Indian National Congress. Indian National Congress. Rahul Ji. Sonia Ji. Sonia Ji. Rahul Ji. Sorry. Rahul Ji. हम तुम्हारे साथ हैं. Rahul Ji. हम तुम्हारे साथ हैं. Indian National Congress. जिंदाबाद. İsrail Aleyhisselam dünyasımız bir insan har akli muhabbet प्यार चावल यकान परमो कुल नफ्सिन जायका फरमाए सा इस्राइल क्या करो मारी मसारी युताई हुकुम में करमत मैं चवाद करमत कुल मन अलैहा फार मैं तो सारी करमत वकतिन कोई फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम चोरन बड़न फरिश्ते गई त्रेन ییٚلہِ یِمن ترٛٮ۪نی موت اَمہِ پتہٕ یی حضرت اسرائیل پننہِ مالک کٲنٛسہِ ہُنٛد اگر تۄہہِ یہِ دُنیاہس منٛز آسیو اگر کٲنٛسہِ زرس برابر کار آسہِ کوٚرمُت تٔمِس یی تَمیُک بدلہٕ دِنہٕ اگر تُہۍ کرو تِمن لُکھ یاد یِمو لُکو کینٛہہ اَسہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ ڈرُن خۄدایس اَسہِ چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ کٲم کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ حق چھُ سال قبل ہمارے خواجہ غلام محمد صادق صاحب جو ہمارے کانگریس کا وہ ننا منا سُہ گوٚو کران صٲبس پیتٕر بیٛاکھ وراثت چھِ اَسہِ لفظن صٲبٕنۍ یُس زن ییٚتہِ تِمن لفظن صٲبُن خاندان چھُ اَسہِ عادل صٲب باقٕے بسم اللہ استعوذ بالله السميع العليم من الشيطان کیا کیا ہے اس کو دہرایا جائے گا ان کو یاد دہانی کیا جائے گی مرحوم قاسم صاحب اور میر صاحب میر رازن صاحب چھُس ونان اللہ تعالیٰ کٔرِنکھ جن چھنس ووٹ آمُت باقٕے چھُنہٕ آمُت کُنہِ چیٖزس ووٹ اگر تُہۍ وٲتِو کانگریس ٹیم اکھ بنٲیِو ہر ڈسٹرکس منٛز نظر دِنۍ وہ مرتے دم تک 1971 تک وہ ہمارے چیف منسٹر رہے اور قوم کی خدمت کرتے رہے انڈین نیشنل کانگریس زندہ باد شریمتی سونیا گاندھی زندہ باد شری راہل گاندھی زندہ باد جناب پرواز صاحب زندہ باد یہ ریل ہش اور بچوں نے تیاری کرے تھا وہ کر یاد کی محترم المقام ہمارے بزرگ محسن محترم گھر سے باہر نہیں نکلتے. دیکھیے آج ہم نے ایک روایت کے طور پہ جو کانگریس میں روایت ہے کہ اپنے جو اس دنیا سے گئے ہوئے جتنے بھی قائدین ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان کی جو کنٹریبیوشنز رہی ہیں سوسائٹی کی طرف یا جموں کشمیر کی پالیٹکس کے بارے میں اس کو دہراتے ہیں اور اعادہ کرتے ہیں کہ ان کے جو کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اصول تھے اس کو ہم آگے چلائیں گے. آپ اگر دیکھیں گے آئی ہیو بین دا فائنانس منسٹر مجھے موقع ملا فائنانس کو ڈیل کرنے کا. کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہم بھی جانتے ہیں باہر تو بڑے تجربے کار لوگ ہیں لیکن اپنے تجربے کے مطابق میں نے جس وقت اس میں ڈیٹیلز میں نے اس میں کھوج کی تو وہ ہمیشہ جگلری آف فگرز ہی لگا وہ. اور اس کے علاوہ جو پچھلے آپ بجٹ دیکھیں جتنے بھی سوشل کنیکٹ جو ہونا چاہیے جن ڈپارٹمنٹس کا ہے جیسے ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے ان سب کا بجٹ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں فگرز کو آپ پچھلے فگرز کو اور اس فگرز کو دیکھیں تو سوشل سروسز کے اوپر
हमारा उतना ध्यान नहीं है। हमारी जगलरी ऑफ फिगर्स जो है वो शायद जो अंडर द कारपेट कुछ कार्रवाइयां जो वहां पे चल रही हैं उसको कवर अप करने के वास्ते वो फिगर्स, प्रोजेक्टेड फिगर्स जो हैं वो सही नहीं होते। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब सरकार के बिना की बुनियाद पे कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। हमने भी अपनी पार्टी की बुनियाद पे अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को रखा था कि जो एक साल से बल्कि सदियों से जो एक रिवायत चल रही थी कि जम्मू का दरबार जो होता था वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से नहीं था, उसके पीछे एक फिलॉसफी थी, उसके पीछे एक इंटीग्रेशन था। जम्मू और कश्मीर के रीजनल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन, इवन रिलीजियस इंटीग्रेशन, देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन अभी तक जारी थी। लेकिन बीजेपी क्योंकि हमेशा हर सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करती है, जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पे जम्मू को हिंदू एरिया डिक्लेयर किया, कश्मीर को मुसलमान एरिया डिक्लेयर किया, बावजूद इसके कि जम्मू में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, बावजूद इसके कि कश्मीर में अच्छी खासी तादाद हिंदुओं की भी है। लेकिन उन लाइंस पे उन्होंने एक ये जो इंटीग्रेशन जो चलती आ रही थी उसको ब्रेक करने की कोशिश की। हमारी जो हमारे मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था, हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि हमें वो रिवायत जो है जिससे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बढ़े, जिससे वहां का कारोबार और यहाँ का कारोबार बढ़े, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, जिससे इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एरियाज जितने भी हैं सोसाइटियल एरियाज वो बढ़े, उसके वास्ते हम हमेशा से तैयार हैं। हमारी भी यही डिमांड है, हमारी भी यही गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। देखिए, मैं तो फिर अपनी उसी बात पे पहुंचूंगा जो मैं इलेक्शन से पहले से कहता आया हूं। जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे लोग जो है वो कैजुअलिटी बने हुए हैं। आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए, लोग भी समझते हैं इस बात को कि अंडर यूनियन टेरिटरी जो चुनिंदा सरकार होती है, जैसे दिल्ली की आप देख लीजिए, पांडिचेरी की देख लीजिए, आप जितनी भी यूटीज यहाँ पे उनको देख लीजिए, दे हैव लिमिटेड दिस पावर्स। और इसीलिए हमने इलेक्शन से पहले से ही इस चीज का इरादा किया था, रीइटरेट अभी भी हम वो कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी को जब तक जो हमारा हक बनता है, हम किसी से भीख नहीं मांग रही है, ये हमारा हक बनता है। और उस हक तलफी में बराह रास्त बीजेपी का हाथ है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग परेशान रहें, उनका इंटेंशन यही है। वरना अभी तक बिजनेस रूल्स न बनना, कौन सी जवाजियत है इसमें कि बिजनेस रूल नहीं बन सकते? कौन सी जवाजियत है इसमें कि वो इस चीज को ये थ्रैश आउट नहीं कर सकते कि एलजी के पास क्या इख्तियारात होने चाहिए और चुनिंदा सरकार के पास क्या इख्तियार होने चाहिए? मैं इस बात को उनकी बदनीति के साथ जो है वो कह सकता हूं कि उनकी नीयत जम्मू कश्मीर के ऊपर सही नहीं है। अभी पीछे ही मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वो वीडियो, वो ऑडियो माइक पे सुनाया जो उन्होंने 19 सितंबर को यहाँ पे इलेक्शन के दौरान में, जबकि 25 को यहाँ पे वोटिंग होनी थी, 19 तारीख को यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया और कहा कि अगर कोई दे सकता है तो बीजेपी देगी, हम वादाबंद हैं, हम हमेशा से लोगों के साथ हैं और हम हर वो चीज करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को आसाइश और सहूलत होगी। क्या यही और आसाइश और सहूलत वो दे रहे? किस चीज की सजा दे रहे हैं वो? ये तो हमारे वास्ते एक, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलेक्शंस भी अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना होता तो शायद बीजेपी यहाँ पे इलेक्शंस भी ना करवाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ एक और ऑर्डर उनको दिया, एक और डायरेक्शन दी कि स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट होना चाहिए। अगर अपने कहे का, अगर अपने जो आप ये रिटॉरिक्स करते हैं उसका अगर आपको कोई एहतराम नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का तो एहतराम कीजिए। मैं फिर घूम फिर के उसी स्टेटहुड पे आता हूँ। मुझे बताइए, आज के दिन में पावर जनरेशन किसके हाथ में है?
whether it is with LG or it is with the chief minister. Nobody knows. उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथ में है? आप उन ऑफिसर से बात कीजिए कि आप किसके अंडर हैं. Even they would not be able to tell you कि whether we are reporting to LG or we are reporting to chief minister or the elected government. So घूम फिर के बात उधर ही आती है. Well, as far as we see the miseries of the people, it's a total neglect. I can't deny it. It is a total neglect, and this power crisis is a pain. It's a misery, and I don't know if there are people who are inflicting this misery purposefully.